Kindly like this video, subscribe to my channel Canny's World, and press the bell icon for further updates in the future. Okay, Pop. When you start a play, do you start with a character? A person, a human being. My father was a national icon decades before I was born. Giant of the American theater, Arthur Miller. There was nothing more important than a great play. I think they felt, oh my God, that's me. Early on, I recognized that his public persona was so different from the man I knew. I'm gonna cut up this here chicken. My perception as I grew up was that you had a lot of disappointments in the theater. I agree with you. But the voice is the important thing, that you don't go silent. I'm the guy that goes around and says, well, what is really going on? I enjoyed being father. I enjoyed also escaping being a father. Did you get the feeling that Dad had a weak spot for being adored? Mm-hmm. Yeah. Art is long. Life is short. I forgot the Latin. वो बहुत धीमी है, मतलब अभी तक स्टोरी जो है वो कछुए की चाल चल रही है, अभी उसके अंदर वो तेजी, वो ड्रामा हमें नजर नहीं आया। यानी यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई नॉवेला पढ़ रहे हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, यानी कोई उसके अंदर वो कोई ड्रामेटिक इफेक्ट उस तरह से आपको नजर नहीं आ रहा। इवन के जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स ने अपने आप को पूरी तरह, they didn't reveal their true colors at the moment. अच्छा जी, but the scene is changed after the arrival of the cousins. The stage lights focus on Alfieri, who forwards the time to 10 o'clock. 10 o'clock is the time due for the arrival of the cousins, and reflects on Eddie as a good, hard-working man. The stage focus switches back to the home where Marco and Rodolfo have just arrived. The family warmly receives the cousins, who are two brothers. Beatrice is overjoyed to see her cousins, and Catherine is stunned by the younger brother Rodolfo's blonde hair. See? The cousins talk about their lives in Italy and dreams for living in the US. It's again a very typical family thing. आप लोगों के फैमिली में या दोस्तों में बहुत सारे ऐसे जानने वाले होंगे कि जो इस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, और जब आप बैरून मुल्क जाते हैं इलीगली और इस तरह कोई आपको होस्ट करता है आगे, तो सबसे पहले तो आप रुदाद उसको सुनाते हैं कि जिन हालात से गुजर के आप वहाँ तक पहुँचे, और फिर अपने मुल्क के अंदर आपके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हुई, क्या क्या जबर आपको सहने पड़े, और किन हालात ने आपको मजबूर किया कि आप अमेरिका का रुख करें। तो यहाँ पे वो कजन्स वो टिपिकल स्टोरी जो है वो बतानी शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो they are talking about their life at Italy and their dreams. So Marco discloses that he has been having a very tough life in his country. He plans to stay in America for 5 to 6 years to support his family. His elder child is sick. तो यहाँ पे मार्को जो है वो बताता है कि किन मुश्किल हालात के अंदर उसने ज़िंदगी गुजारी इटली के अंदर, और his children were starving for the food, और उसके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, और किन हालात से गुजर के मजबूर हो के वो यहाँ तक पहुँचा। He says that his children will never grow fast if he leaves America too soon. और वो कहता है कि अगर आप मार्को का कैरेक्टर देखें तो शुरू में ही आपको उसका कैरेक्टर बड़ा डिसिप्लिन्ड नज़र आता है, उसके अंदर एक प्लानिंग, एक कमिटमेंट आपको नज़र आती है, और वो पूरी सोच विचार करके कैलकुलेट करके आया कि मैंने इतना अरसा यहाँ पे स्टे करना है, इस तरह मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। ठीक। रोडोल्फो शेयर्स व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग इन इटली। रोडोल्फो अपनी कहानी सुनाता है, और फिर उसमें वो बताता है कि किस तरह वो हॉल करते रहे हैं, पुश करते रहे हैं, जो पुश कॉर्ट्स हैं उनको
तो फिर उस पे जो कैथरीन है वो उनसे पूछती है कि वहाँ पे क्या ऑटोमोबाइल्स वगैरह नहीं हैं, तो वो कहता है कि ऑटोमोबाइल्स भी हैं तो उनको भी पुश करना पड़ता है। रोडोल्फो कहता है कि एवरीथिंग इन आवर टाउन यू गॉट अ पुश। ठीक, तो ये एक बड़ा वो आप यूं समझ लें कि एक स्नीयरिंग रिमार्क है उस वक्त के इटली के ऊपर जो हालत जंग से अभी ताज़ा बाहर निकला था। Rodolfo plans to stay in America forever, becoming an American. Rodolfo कहता है कि मैं तो वापस कभी नहीं जाऊंगा इटली, मैं I would like to be treated as an American. He desires to become a singer one day. So both of them are sharing their dreams with the family. Marco is married and has 3 children, and he wants to send his earnings home to his children. Rodolfo is unmarried and would like to become an American and own a motorcycle when he is rich. So very innocent desires. जब आप किसी इस तरह के मुकाम पे पहुंचते हैं तो उस वक्त आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो बड़ी इनोसेंट होती हैं और उस वक्त आपको खुद नहीं अंदाज़ा होता कि व्हाट इज़ गोइंग टू बिकम ऑफ इट। तो रोडोल्फो कहता है कि वो एक मोटरसाइकिल खरीदेगा और फिर जो होटल में मौजूद लोग हैं उनकी कैटरिंग करेगा और इस तरह से वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। सो रोडोल्फो ऑल्सो ब्रैग्स अबाउट हिज ब्रीफ करियर एज अ सिंगर एंड इवन serenades the house with paper doll. तो ये भी एक बड़ी टिपिकल चीज़ है कि जब आप किसी ऐसी गैदरिंग के अंदर मौजूद होते हैं तो फिर आप हर तरह का टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हर वो स्किल जो आपके पास होती है आपकी कोशिश होती है कि वो फैमिली तक पहुंचे। तो वो जल्दी से अपना तारुफ एज अ सिंगर करवाता है और वो पेपर डॉल जो सेरेनेड है वो गाना शुरू कर देता है। सेरेनेड इज अ सॉन्ग विच यू सिंग टू योर बिलवड। और अगर इसको थोड़ा रोमांटिकली आप देखें तो ज़्यादातर जो आप महबूबा की बालकनी के नीचे खड़े होकर म्यूजिक बजाते हैं उसको सेरेनेड कहते हैं। सो इट इज डिस्टर्ब्ड एट कैथरीन्स इंटरेस्ट इन रोडोल्फो। तो यहाँ पे वो टसल, वो टेंशन, वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू होती है जो स्टोरी को बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग बना देती है और जहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो अपना जो उनकी वो छुपी हुई आइडेंटिटी होती है उसको वो जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे वो टसल शुरू हो गई है। एडी को ये बात सख्त नागवार गुजरी है कि कैथरीन जो है वो रोडोल्फो के अंदर इंटरेस्ट ले रही है और कैथरीन बार बार बेट्रिस को कह रही है कि वो अनमैरिड है, वो ब्लॉन्ड है, वो बड़ा खूबसूरत है। एंड सडनली आस्क्स हर व्हाई शी हैज़ हाई हील्स ऑन एंड मेक्स हर गो टू द बेडरूम टू चेंज। तो वो जल्दी से उसको कहता है कि ये तुमने क्या हाई हील्स पहनी हुई हैं, जाओ जाके चेंज करके आओ। तो यहाँ पे भी वो एक उसका वो आप देख सकते हैं कि एक मुहतात रवैया जो है उसका वो नज़र आता है हमें। एडी नोटिसेस, यहाँ पे अब एडी और रोडोल्फो का सीन है कि एडी नोटिसेस दैट कैथरीन हैज स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन रोडोल्फो, सो ही embarks upon a mission to ruin Rodolfo's reputation. Eddie, this is his remark. Look, kid, you don't want to be picked up, do you? जब वो प्ले कर रहा होता है पेपर डॉल तो एडी को ये चीज़ बड़ी नाखुशगवार गुजरती है क्योंकि कैथरीन उसको बड़ी दिलजोई के साथ सुन रही होती है। तो वो उसको कहता है कि क्या तुम ये जिस तरह लगातार बजा रहे हो तो क्या तुम्हारा दिल है कि तुम्हें वो आके उठा के ले जाए इमिग्रेशन वाले। एडी विद दैट वैकी हेयर ही इज लाइक अ कोरस गर्ल आल्सो। तो यहाँ पे फिर आगे उसका एडी का मुकालमा जो है वो बेट्रिस के साथ है। तो बेट्रिस उसको कहती है कि वो बड़ा खूबसूरत है और वो कैथरीन के लिए बड़ा सूटेबल रहेगा एज अ मैच। तो एडी उसको कहता है कि विद दैट वैकी हेयर ही इज़ लाइक अ कोरस गर्ल और सो। तो वो कहता है कि वो तो कोई कोरस गर्ल लगता है जिस तरह के उसके वो ब्लॉन्ड हेयर हैं और जिस तरह वो हर वक्त गा रहा होता है। तो बेट्रिस कहती है ही इज़ ब्लॉन्ड, सो एडी आई जस्ट होप दैट इट इज़ हिज रियल हेयर, दैट्स ऑल आई होप। तो वो कहता है मुझे तो लगता है उसके बाल भी नकली हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि वो हर तरीके से उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके मैं अपनी फैमिली के दिल में उसके लिए नापसंदीदगी और नफरत डाल सकूं। सो एडी व्हाट इज सो क्रेजी, आई डोंट लाइक दिस हिज होल वे। वो कहता है कि मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, पूरी तरह ही पसंद नहीं, उसकी कोई बात भी पसंद नहीं। तो एडी आई डोंट नो बी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट।
तो Beatrice उसको कहती है, what's the matter, Eddie? You don't like me, huh? तो Beatrice has noticed that Eddie is worried. He is not taking interest in his familial matters. So she just wants to ask him that what is he occupied with. But Eddie says that he is not worried. He doesn't want to talk about that matter. Eddie, what do you mean I don't like you? I said I don't feel good. That's all. So Eddie says that it's not that he has stopped loving his wife. It's just that he is not feeling good these days. So Beatrice, well, tell me, am I doing something wrong? Talk to me. So Eddie paused. He can't speak then. I can't talk about it. Eddie. B is here referred to as Beatrice because out of love he is calling her B. So B, he is taking her for a ride. So at last he shares it with the Beatrice that the thing that is causing him distress is that Eddie is the Rodolfo is very often taking her niece for a ride. So Beatrice says, all right, that's her ride. What are you gonna stand over here till she is 40? Eddie, I want you to cut it out now. You hear me? I don't like it. So Beatrice is always criticizing Eddie for his too much attention. She is of the opinion that the niece is now in her 80s and she should be allowed to decide for herself. So then there is a scene with Eddie and Catherine. After that, Catherine, he takes my arm and bows to me. And when Eddie shares it with the Catherine that he does not like her going out with that Rodolfo. So she says that he takes my arm and bows to me. You have got him all wrong, Eddie. So she says that perhaps Eddie's perception of Rodolfo is not very accurate. He is very kind, he is very loving, and he always takes her by the arm and bows to her. So Eddie says he is only bowing to his own passport. So this is the first objection that is raised by Eddie on Rodolfo. He says that he is only bowing to his own passport. He marries you, he has got the right to be an American citizen. That is what is going on here. So Eddie is trying to convince the Catherine to stop going out with the Rodolfo, to stop taking interest into Rodolfo, because he is on the mission to achieve his American citizenship, and he is only using her as a ladder. And the moment he grabs that American citizenship, he will have nothing to do with the Catherine. So Eddie pursues Catherine to not to get involved with Rodolfo as he is selfish. He does not even care for the starving kids of his brother. That is another objection which is raised by Eddie, that Rodolfo is continuously buying jackets, guitars and other musical instruments, and he is not even bothering about the starving children of his brother. So he says that he is very cruel, he is very selfish, and that man doesn't have the heart. So he adds that he is careless, he is not even worried about his own papers. So he says that at this moment of crisis, he should scrap together all his earnings in order to be able to get his papers. But he is not paying attention to it. He is spending his money uselessly. So Eddie warns Catherine that she will get divorced soon after her marriage. So their conversation is interrupted by Beatrice, who calls away Eddie. When Beatrice comes, she again says this to Eddie, that he is not allowed to have such a loud conversation with her niece. And she is grown up now and she can decide the things for herself. So Beatrice is harsh upon Catherine as well for being so intimate with Eddie. So Catherine has perhaps noticed something mysterious between Catherine and Eddie, and she is suspicious. So Beatrice, I don't understand this. He is not your father. So Beatrice says it to the Catherine that you need not get so intimate with
Eddie because he is not your father, and you must not allow him to decide the things for you. You must take your own responsibility. No, you are grown up now. So Catherine says, yeah, but how am I going to do that? He thinks I am a baby. So Beatrice, you can't act the way you act. You still walk around in front of him in your slip. Catherine, well, I forgot. Beatrice, well, you can't do it. Or like you sit on the edge of the bathtub talking to him when he is shaving in his underwear. So these are the objections raised by the Beatrice on the Catherine's intimacy with Eddie. So she wants her to stay away from the Eddie and to take control of her affairs. So then is a scene with Eddie and Alfieri. Sir, am I taking too much time? No, you are doing a phenomenal job, and I really like it. I mean, I'm really enjoying it right now. So keep going, and after you finish, we'll take 5 minutes break. So everybody prepare their questions, and then we'll keep moving with that. Thank you. Keep on, keep going. Then there is a scene of Eddie and Alfieri. Eddie visits Alfieri and tries to convince him to proceed against Rodolfo, who is cheating on Catherine. So when Eddie realizes that he cannot stop Rodolfo from going out with his, he's using Alfieri as just 1 second. Abdul Manan, would you please Abdul Manan, would you please mute yourself? I will be very thankful to you. Abdul Manan, can you hear it? Abdul Manan, can you hear us? Hello. Hello, Abdul Manan. Okay, thank you, Manan. All right, Malik. Sorry, sir. Sorry, sir. I just forgot. It's okay. It happens. No problem. we welcome you in our discussion. Okay. Yes. Please, Malik Saab, continue that. Yes, sir. So that served as a background music. Great. Well said. Okay, sir. So when Eddie realizes, saying you guys because you were just reading for a long time. Thank you, sir. So Eddie visits Alfieri and tries to convince him to proceed against Rodolfo, who he thinks is cheating on Catherine. And when he enters into a dialogue with Alfieri and gives his arguments, Alfieri refuses to offer any help as he cannot find sufficient legal grounds to do so. So Alfieri discloses it to the Eddie that the law does not allow such interruption, that he is powerless to do this. This is what he was actually referring to when he said that he was a powerless lawyer of the empire of Julius Caesar. So at that moment, he realized that he was powerless and he could not help Eddie out of these circumstances. So he suggests Eddie to not to meddle into this affair as it is lawful to marry an American national. He says that Eddie cannot stop Rodolfo from marrying Catherine just because he is cheating on her. He has every right to do so because the law permits him to marry an American citizen. So he asks Eddie if he wants to report the illegal status of these immigrants to the authorities because it is the only way to stop Rodolfo from marrying Catherine. Eddie, however, refuses to this suggestion. So Eddie, at this time, you can say that he is morally bound to not to report the guests to the immigration authorities. So let's move on to the next slide. Okay, no,
the next scene is the scene at the dining room scene. They are sitting together at that place, and they are having a family gossip. So Eddie is asking Marco about how they lived in Italy. So every time he enters into a dialogue with them, or he is having a conversation with them, he tries to condescend them, to make them feel that they are inferior, that they should be thankful to this family that they are hosting them here to secure their future. So Eddie is asking Marco about how they lived in Italy. So Marco shares a story about family boats. He says that we used to have family boats, but these were not actually our boats. And whenever our family members were sick, they would ask us to drive those, to row those boats. So Eddie is more interested in bringing out the miseries of those two brothers, especially Rodolfo, so that the Catherine may realize that perhaps this is not the most suitable match for her. So Beatrice advises Marco not to send too much money to his wife and save something for the rainy days. It's again a very typical hysterical girlish womanish thing, that they keep on advising men about with Mark, he would see a couple of more children than he bore on his return. So Eddie says that if he keeps on sending too much money to his wife will become faithless, and she might get involved in certain extramarital affairs with other men. And when he returns to his home, he might have some other children which he did not bear from her. That's very interesting, the very Yes, interesting remarks. Okay. Exactly, sir. So Marco says the law is too strict for that. So Marco, who has taken this command to his heart, he says that the law in that country, Italy, does not permit a woman to roam about faithlessly. She will be taken care of by the law. So that he would see a couple of, Rodolfo endorses that. Rodolfo says that this is quite right, because the law of Italy does not permit a woman to become a faithless slut or something like that. So Eddie, finding it appropriate, shares, actually he was preparing a ground for his argument, which he is going to have now. So Eddie, finding it appropriate, shares that the law is not flexible even here. So you gotta seek permission from elders before taking a girl out. So actually this is what was in his heart, and he just wanted to share it with those immigrants, that Rodolfo was taking out his niece without seeking permission from Eddie. So Eddie had an objection to it, and he said that he would mind if Rodolfo takes his niece to go out without seeking permission. So Catherine, when she hears that, so she is burning with revolt, and she plays a record and asks Rodolfo to dance, and they start dancing. Later on, Eddie desires to teach boxing to Rodolfo. When Eddie notices this, that they are getting too intimate with each other, and they are dancing together in front of him, and they are not even bothering about his interruptions or his admonitions. So he desires to teach boxing to Rodolfo. He invites him, and he asks him that if he wants to practice boxing, he can assist him in this regard. So while practicing, he gives him a hard blow at his jaw. Catherine and Beatrice are annoyed. Catherine rushes to Rodolfo to see if he is hurt. So she invites Rodolfo to dance again. So that episode ends there, and Rodolfo does not mind it, although he minds it, but he does not accept that he has been hurt. He just says that it was a usual bruise that you get during boxing. But his brother Marco has minded it. He is annoyed.
So again, Catherine, she is also annoyed at this action of her uncle, and she asks Rodolfo to go for a dance once again. They have bought a new record which they are going to play. So they start dancing again. So while the dance, Marco throws a challenge to Eddie. He takes up a chair and he brings it to Eddie and puts it in front of him and asks him to lift it, holding it from its hind legs. Eddie fails to do so. And Marco lifts that chair up at the head of the Eddie and keeps it there, T-H-E-R-E there, sorry, it's a mistake, with a threatening stare. So he is having a stare lock with Mr. Eddie, which is very threatening, which is very emotional. And he just wants to warn him to keep out of the affairs of his brother. So that is the end of the act 1 of this play. I really appreciate, you came up with very, new ideas and new things. And I really appreciate that. If you, let's take a just 5 minutes break. So we can prepare our questions for you. And because we are discussing everything since 4 o'clock, so it's almost 2 hours been passed, and I think we need a fresh cup of coffee and something like that. So let's take a 5 minutes break. And I really like the way all of you are coming across this text, and I really appreciate the hard work you're putting in. So with that. Let's take a 5 minutes break and come back with your questions. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Malik Hassan Raza, we all appreciate that you gave us 5 minutes to prepare our questions from you. Malik Hassan, are you hearing my voice? Anybody is hearing my voice? Yes, sir. I am Usman Ali. Usman, first of all, this exercise is a very good one. We are discussing a lot in this forum, and I'm planning to conduct this forum every month. So we all participate in revising certain concepts and coming up with a new dimensions with it, and come up with our new perspectives on it. Yes, sir. That's really very beneficial for all of us. And secondly, it's an exercise for you guys, at the end of your PhD program. The Viva and all other things. And secondly, matter of fact, for generally speaking, after the coursework, then that's the way your supervisor will lead you. Your supervisor will conduct a meeting, and he will give you the time to explain what you are doing and how you are doing it. Both things are very significant and very important. So now, if Malik Hassan is here, I think Malik Hassan is still on a break. Who's it's really hard. He did a phenomenal job. Yeah, I understand, after presenting your and it's amazing that all of us, we teach, as a profession. Yes. And, it's amazing to see you guys explaining the concepts and all other stuff. So it's really appreciable. Malik Hassan, if you are here, can I start the debate again and a discussion? Are you ready for it? Yes, sir. Malik, my first question is that from you is that in the first act, you see the exposition of the characters, and then you see another thing which is very important is the rising tension between the character, and you see a conflict. Can you explain me that in the first act, what kind of conflict was rising?
जी सर, कॉन्फ्लिक्ट इब्तदाई उसकी शक्ल तो ये है कि जब वो इमिग्रेंट्स आए हैं तो शायद बेट्रिस के जहन में ये ख्याल है कि एडी जो है वो उनको कभी भी अपने घर में उस तरह से नहीं रखेगा, लेकिन जब उसने रख लिया है तो उसके बाद कुछ अय्याम गुजरे हैं तो उसको ये शुबा होना शुरू हो गया कि शायद ये मुझसे नाराज है और इसको शायद लग रहा है कि हम अनड्यू फेवर कर रहे हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर रख के। लेकिन it turns out to be a different thing when Eddie shares with Beatrice कि he is annoyed just because Rodolfo is taking out her niece Catherine for a ride। तो वहां से फिर वो टेंशन जो है वो उनकी स्टार्ट होती है और वहां पे फिर वो बेट्रिस जो है वो सस्पिशियस हो जाती है कैथरीन और एडी के रिलेशनशिप को लेके। तो एक तो बेट्रिस की टेंशन चल रही है एडी और कैथरीन के रिलेशनशिप को लेके, एक एडी की टेंशन चल रही है बेट्रिस के और रोडोल्फो के रिलेशनशिप को, सॉरी कैथरीन और रोडोल्फो के रिलेशनशिप को लेके, और एक मार्को की टेंशन चल रही है एडी और रोडोल्फो के रिलेशनशिप को लेके। तो ये सारी टेंशन्स जो है वो कंबाइन होके इन सारे कैरेक्टर्स को जो है वो एक खास साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तरफ जो है वो धकेल रही है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं उस्मान को मौका देना चाहता हूँ। उस्मान, आप अपना कोई क्वेश्चन पुट अप करें। जी सर, श्योर। Malika sir, it was really wonderful to reread the text actually. I tried to read it very minutely, but of course there are certain points which are left in your first or second reading, and you just reinforced me to certain points which I was just looking and just highlighting during your discussion. So that's really wonderful. लेकिन हसन साहब, एक जो है ना मेरे ज़हन में, मैं जब इसको खुद भी पढ़ रहा था, जब आप इसको इलेबोरेट कर रहे थे, तो एक चीज़ मेरे ज़हन में बार बार स्ट्राइक कर रही थी, वो उसके लैंग्वेज के हवाले से, कि हम देखते हैं कि ये लोग जो ये इमिग्रेंट्स हैं, इटालियन हैं। अब ये लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, उनकी तो समझ आ गई कि वो इंग्लिश जिस तरह से वो लिखी हुई है बोल रहे हैं, उस लोकल स्लैंग एक्सेंट में जो मौजूद है वहाँ पे बोला जा रहा है इस एरिया में। लेकिन ये जो लोग आए हैं अभी, रोडोल्फो और मार्को, ये इटालियन हैं और ये अभी पहुंचे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे राइटर ने उनकी लैंग्वेज को जो डिपिक्ट करने की कोशिश की है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, क्या वो इंग्लिश जानते हैं या उनका कोई ट्रांसलेटेड वर्जन दिया गया है? मतलब इस हवाले से कोई बात समझ में आती है? मैं ये जरा एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि जैसे हम देखते हैं कि हम अगर उर्दू में कोई नावल पढ़ते हैं तो एक रस्टिक जो है वो एरिया से बंदा आता है शहर में, तो वो उसका ही अंदाज अपनाने की कोशिश की जाती है अगर उसको रियलिस्टिक वे में बयान करने की कोशिश की जाए तो क्या ये जो इटालियन यहाँ पे आए हैं, दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और दे आर स्पीकिंग इन इटालियन? व्हाट डू यू थिंक आई मीन टू से? हाँ जी उस्मान भाई, इसका जवाब जो है वो मैं आपको अपने ज़ाती तजुर्बे से देना चाहूँगा, क्योंकि हम एक बदकिस्मत मुल्क में रहते हैं जहाँ पे सर, अगर आप 1 मिनट ज़रा होल्ड। अच्छा सॉरी यार, वो कुछ और मामला थोड़े देखने पड़ गए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ज़ाती तजुर्बे की, कि अगर हम ये यूरोप में या इन ममालिक के अंदर जाएं ना, तो वहाँ पे शायद लोगों का इंग्लिश के साथ उनकी फेमिलियरिटी बहुत ज़्यादा टूरिज्म के हवाले से, ठीक, एक टूरिज्म के हवाले से, दूसरा क्योंकि ये लोग खुद भी बाहर आते जाते हैं या जिन फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं वहाँ बहुत सारे दूसरे गोरे भी काम करते हैं। तो ये एक एज जो है आप उसको दे सकते हैं कि वहाँ पे एक एवरेज जो ले पर्सन भी है उसकी भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंसिडरेबल ही। जी सर, प्लीज वुड यू लाइक टू say something about it, because I'm confused about this point. Actually, to very honest with you, 2 things are very important. पहली बात तो ये कि ये हमें देखना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है राइटर का। वो राइटर के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है? वो कॉन्ट्रैक्ट ये कि ये अंडरस्टूड समझे कि अगर वो ये जुमले इटालियन में भी कह रहे हैं तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि थिएटर की दुनिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि थिएटर की दुनिया में हमेशा क्या होता है कि प्ले के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑडियंस का और प्ले राइट का। एंड व्हाट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इज? द कॉन्ट्रैक्ट इज दैट they both understand that the language used in the play
is just to there's no translation required in that. And in other words, they comprehend that, if there's somebody saying something in Punjabi, for example, let me give you an example. There's a play, Black is My Robe. Now, Black is My Robe is a South Asian play. It's basically play in Saraiki, and now it's in English. So whenever you perform that play, it's understood that these words were uttered in Saraiki. So there is no doubt about it. So in other words, there is always a contract between audience and author. Over here, the contract is that the language they all understand, because the audience is English speaking. So that's why the language is like that. All right, now I ask Kamran, can you participate in that? In the first act? Yes. Do you have any question from Malik Hassan right now? Yes, sir. I ask one question from to Mr. Hassan. In the first act, you see Catherine notice the position, notice the activities of Beatrice when she sit on the bathtub, or she moves from around the eddy. Mm-hmm. And does she feels any threat from Catherine regarding the relationship of husband and wife? Yes, this is a very interesting question. Yes, Malik Saab, I am Madhan mein aaye thala. This is a very interesting question from Kamran's side. An interesting question from Sir Kamran. Mm-hmm. Actually, after that dialogue, the next dialogue is that she asks Catherine that are you jealous of me? Mm-hmm. So Catherine says that initially I was jealous of you, but no, I am not. And then she says that she has always treated her like her own daughter, but she does not see it coming from her husband, Addy. So that is why she is warning her against him. And she, when she shares this thing with her, actually, it's not that she is blaming her. Mm-hmm. She is teaching her a new phase of life, because she is grown up now. Mm-hmm. And now these things seem objectionable, because previously when she was in her when she was 12 years old or 14 years old, even she uses this word that when you were 12 years old, these things were okay. But now, as you are a grown-up woman, you should take care of all these things. So this admonition from Beatrice is not actually a comment on the relationship between prevailing relationship between Catherine and Eddie, but she is admonishing her in general, that being a grown-up girl, you should take care of these things. One thing I really miss it, and I hope that all of you are doing it right now, is that all of you should watch the movie, A View from the Bridge, and see from there, what kind of body language, because it's very significant to feel the body language in a text. What kind of character and what kind of body language they are using, because sometimes what you say is one thing, and how you say it, that's even more important. So I request all of you to see the movie and see this particular aspect which Kamran highlighted. Now I would like Aksa to ask any question. Aksa, you should participate in that. And you come up with a question, please. Okay. Sir, my question is, in Act 1, there is a line, in this neighborhood to meet a lawyer or a priest on the street is unlucky. To meet a lawyer, I can understand is unlucky, in which sense, but according to religious point of view, I didn't understand why he said that to meet a priest is unlucky.
Please, if you know, then please tell me, because I didn't understand it. It's not a question. It's you can say that I didn't know about it. जी, थैंक यू मिस अक्सा। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये उसकी अल्फियरी की लाइंस हैं, जब इब्तिदा में वो अपनी इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है और वो कहता है जी कि अगर आप किसी लॉयर को, या इफ यू कम अक्रॉस अ लॉयर और अ प्रीस्ट, यू हैव दिस फीलिंग अबाउट देम। तो आप देखें कि अब इस वक्त जो एक क्योस पैदा हो चुकी है, जो एक खला पैदा हो चुकी है सोसाइटी के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, आइडियोलॉजीज के अंदर, प्रैक्टिसेस के अंदर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अब उसका वो स्टेटस नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो जब आप उसको देखते हो तो आपके अंदर वो बड़ी एक अनहाइजीनिक किस्म की वो फीलिंग जो है वो पैदा हो जाती है उसको देख के। बिकॉज प्रीवियसली अगर आप देखें तो जिस तरह से उनका वो होल्ड रहा है सोसाइटी के ऊपर, उनके आप इसी का आर्थर मिलर का जब वो द क्रूसिबल पढ़ते हैं और उसमें वो जो उसकी सेटिंग है सैलम प्लेस की, और उसमें जो प्रीस्ट्स का जो है वो विच ट्रायल्स और उनका वो जो होल्ड रहा है, तो मेरा ख्याल है ये उसकी तरफ एक इशारा है। एक्चुअली सर, व्हेन आई रीड दिस प्ले, यहाँ पे जब ये अराइव करते हैं कजन्स, बोथ ऑफ देम व्हेन दे अराइव्ड इन एडीज होम, तो वहाँ पे एडी इनको कहता है कि ओ यू आर मोर ब्लैक, सो यू आर कैथोलिक। So there was a contradiction between Catholicism and Protestantism. So I was little bit confused about the religion कि ये Protestantism और Catholicism के दरमियान ये क्या conflict चल रहा है, and I didn't know, and that's why I was asking you कि well let me address this issue is that if you look at Italians, they all are Catholics. There is no other matter of fact, इटली में जितने कैथोलिक्स हैं शायद ही किसी दुनिया में किसी एक मुल्क के अंदर हो। तो इटली तो वो और वहां पर लोग क्या आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों के लोग आ रहे हैं, दूसरी जगहों के लोग आ रहे हैं, और वो उधर आयरिश भी हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि ये देखिए कि मत भूलिए कि एक तरफ वो जो है वो इनको पकड़ने वाले लोग भी मौजूद है, पुलिस का भी किरदार है कि इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए। तो पुलिस के पास आप मिलते हैं तो क्या होता है, पुलिस को फौरन पता चल जाता है ये इलीगल है, या लॉयर को पता चल जाता है ये इलीगल है। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये दोनों जो है ये पैसा खर्च कराने वाले लोग हैं, इनको पैसे देने पड़ते हैं। यानी कहने मतलब ये है कि पादरी नजर आए तो ज़ाहिर से कुछ तो देना है ना आपने चर्च के चंदे के लिए देने पैसे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये एस्पेक्ट्स जो है, मेरी अक्सर आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ज़रा असाइनमेंट जो है वो मैंने मार्क की है और आज हम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं आर्थर मिलर की तमाम ड्रामेटिक वर्क्स की। हमने कुछ जायज़ा भी लिया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी, मैंने आपको पढ़ाया भी, क्योंकि आज हम आर्थर मिलर ख़त्म कर रहे हैं और लॉर्का को शुरू कर रहे हैं। और आर्थर मिलर के अंदर जो असाइनमेंट्स मैंने आपको मार्क की हैं, वो असाइनमेंट जो है उसके अंदर आप ये इशू ले सकती हैं कि ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइन है कि रोल ऑफ प्रीस्ट एंड लॉयर इन दी प्ले आर्थर मिलर, इसके ऊपर आप मुझे असाइनमेंट जमा करा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। I think it's a great question you raised. So research more, and come up with a clear set of ideas. All right, now let's move to the Act 2, and I request Aksa and Kamran. Ji. So I'm really sorry, sir. I wanted to ask a question. May I? Sure, please go ahead. Ask the question. Okay, thank you very much, sir. Mr. Hassan, are you there? Yes, ma'am. Okay, thank you. First of all, your presentation was very noteworthy, or I learned a lot. Thank you very much for your hard work. Actually, I really got amazed with your, such a loud impression of you that you did not, till the end, you don't consider this play
as as a victim to any incestuous desires. So this, I first of all, I really appreciate you to make such a loud statement, and against the stereotypical established impression, right, which we all are acquainted with. My dear, I have three queries with me. Those are the references from the play. And if you would be generous enough to comment upon that, because I really want to follow you in that stream. The very first thing is, when, one thing, don't you feel when Eddie was physically attacking on Rodolphe, on his physical appearance? So I've perceive that he is trying to making him he's trying to degrade him in front of Catherine with his physical appearance, to which Catherine is attracted. Number one. Number two is that we throughout the play we have come across that Beatrice and Eddie, they are not having normal a normal spouse relationship in terms of bed as well. So and where she also expressed her desire that when I'm going to feel bride again. So don't you think that if he is not attentive to his wife, and he might have intimate feelings, and first of all, Catherine is not his own blood. She's a niece, so she's not that daughter that where he is like getting possessive over that. He might be possessive in terms of a sensual relationship. Last but not the least, Act 2 was basically not yours, but you are familiar with that scene when he kisses Catherine out of that frustration. He kisses, of course, Rodolphe to make him underestimated that he's not even considered a man, and that's why he deserves a kiss from a man. But he kisses Catherine, maybe just to let her know how passionate he is about her, and she might feel the passion in his kiss instead of Rodolphe. So, and last but not the least, sir, I have watched this movie, and that in those, in that visual, a movie going on, I can feel that body language. The way even Beatrice, she alarms, of course, she's guiding her to be mature enough with respect to appearance and other stuff, but somehow she's somewhere, because nowadays on Hum TV there is a program going on, Pyar Ke Sadke. There's a drama, Pyar Ke Sadke. Over there it is also a kind of Beatrice and Catherine debate going on. I mean, that mature lady. Sir, I think you missed the point that on Hum TV nowadays there is a play going on, Pyar Ke Sadke, where Atika Ordo is a mature. And, there is a very famous actor, I just forgot his name. He's a LGS drama teacher as well. You might know him, the antagonist over there. So he is, attentive towards his daughter-in-law. So Atika Ordo being mature, being Beatrice, she feels that kind of, awkwardness and kind of insecurity. So Mr. Hassan, please guide me. Although I really want to follow your stream, so please guide me with respect to these illusions, if you are convenient enough. जी मलिक साहब, फिर मुझे भी मौका दीजिएगा। अब इतनी जबरदस्त बहस अकेडमिया ने छेड़ दी है, तो कहने वाला मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सही सर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इंसेस्ट को हम स्टडी करें तो एक तो चलो इंसेस्चुअस फीलिंग हो गई ना, तो एक इंसेस्चुअस प्रैक्टिस हो गई आपकी। तो इंसेस्चुअस फीलिंग जो है, उससे जिस तरह वो फ्राइड कहता है, उससे तो आपको फरार हासिल ही नहीं है। वो मेरा ख्याल है कोई भी शख्स है उसके अंदर वो जरूर जन्म लेती है अकॉर्डिंग टू फ्राइड जो है। तो लेकिन यहाँ पे हम इंसेस्चुअस डिजायर, हमें फीलिंग जो है वो नजर आती है किसी हद तक, लेकिन जो इंसेस्चुअस प्रैक्टिस है वो हमें कहीं पे नजर नहीं आती। और वो जिसका अभी हम हवाला दे रहे। Sir, he is very smart, Mr. Hassan. You're very smart. I mean, देखिए, मैं एक सेकंड के लिए रुक जाएगा। देखिए, ये जो सारी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जी सर। हम एक तो हम ड्रामा सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उसका आर्थर मिलर के वर्क को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, और ये हमारे लिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट के लिए, because what we are doing is we are producing scholarship in it,
एक नए एंगल्स ला रहे हैं, नई डायमेंशंस ला रहे हैं। मे बी वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, जो एमए के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को सुने, इनसे नए रास्ते निकालें अपने लिए नए इश्यूज को फ्रेम करें। तो मैं देखिए मैं एक्लीमिया से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक्लीमिया देखिए, ये जो हम आज बैठे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, इसकी एक और बड़ी खूबी ये कि हम क्वेश्चंस को रेज कर रहे हैं और उन क्वेश्चन से हम नई चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जरा जवाब दें मजीद मलिक हसन। सर कैन आई स्पीक? जी प्लीज उस्मान आप भी इसमें हिस्सा डालें। आज जी सर वो असल में ना जो ही मलिक साहब ने ये बात शुरू में की थी, तो वो क्योंकि मैंने क्वेश्चन वो लैंग्वेज पे चला गया, तो ये जहन में मेरे स्ट्राइक कर रहा था कि मैं इनसे ये पूछूं कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि मैं जब टेक्स्ट को मैंने भी पढ़ा तो नो डाउट वो जो हम एक टिपिकल वे में चल रहे होते हैं कि जी इसमें इस तरह से हैं, जो बातें हमने सुनी होती हैं जी ट्रेजेडी, और जो इसने लिखी है जी आर्थर मिलर ने, उसमें ये पॉइंट्स होते हैं, तो हम शायद उसी सोच में रख के पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने देखा कि अच्छा जी अगर मैं इन सेस्ट को देखूं तो क्या हम वाकई, अगर उसने नो डाउट ये केस है जिस तरह अभी क्लीमिया जो बता रही थी उस जो है सेकंड एक्ट में, लेकिन हम देखते हैं कि अगर उसकी जो किसिंग है एक्सक्यूज मी, अब उसके साथ जो वो किसिंग है, तो क्या उसका जो रिलेशनशिप है, मतलब कि वो उसका ब्लड रिलेशनशिप तो नहीं है। दिस इज फर्स्ट थिंग जो हमें देखनी होगी कि जो एडी है उसका कैथरीन के साथ ब्लड रिलेशनशिप है कि नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर हम ये देख सकते हैं कि क्या अगर इस तरह से है, अगर मैं अपनी मतलब मुस्लिम हिस्ट्री में देखूं या अपनी फिका में देखूं, तो जो आपकी वाइफ की जो भांजी है, एक्चुअली यू कैन मैरी हर, इसमें कोई मजायका नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वहां पर जो एक मैं चीज ऐड यहाँ पे करना चाहूंगा, जो उस जवाब मेरा मुकम्मल नहीं था हुआ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी 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 प्लीज मलिक साहब, आप ये फोरम आपके पास है। जी प्लीज सर। जो पोस्ट वॉर मैस्कुलिन आइडेंटिटी है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है अमेरिकन लिटरेचर के अंदर। ठीक। और जब आप हेमिंग्वे को पढ़ते हैं, स्पेशली द सन ऑल्सो राइजेस, उसके कैरेक्टर्स को आप पढ़ें, तो अब पोस्ट वॉर मैस्कुलिन आइडेंटिटी में अब ये देखें कि सबसे बड़ा उसको चैलेंज क्या है कि उसकी औलाद कोई नहीं है। यानी हमें इस प्ले के अंदर साफ नजर आ रहा है कि ही इज इशूलेस, उसकी कोई औलाद नहीं है। ठीक, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर उसकी मैस्कुलिनिटी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा दाग है कि इसकी औलाद नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब एक औलाद जो उसने, एक बच्चा जो उसने अपनी औलाद की तरह उसकी परवरिश की है, अब उसके ऊपर उसकी जो अथॉरिटी है वो फादरली अथॉरिटी, अब वो कोई बंदा भी उसको फादरली रिट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि उसके लिए फिर वो बड़ा थ्रेटनिंग है। क्यों? क्योंकि फादरली अथॉरिटी भी जो है वो मस्कुलिनिटी के साथ लिंक्ड है। उस चीज को उसको ये बहुत बड़ा एतराज है कि मुझसे पूछे बगैर ये इस बच्ची को बाहर क्यों लेके गया है। सबसे बड़ा इशू उसको जो है वो यहाँ से शुरू होता है। फिर वो कहता है कि ये अब बच्ची जो है ये नाफरमानी की तरफ क्यों जा रही है, ये मेरे अहकामात क्यों नहीं मान रही। तो मेरा ख्याल है कि वो जो किसिंग वाला भी सीन है वो भी ये मैस्कुलिन आइडेंटिटी की असर्शन के साथ वो लिंक्ड है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और सॉरी सर जी मिस्टर हसन, I really agree with this point कि वो masculinity के साथ assert है, तो he could have slapped her, he could have pushed her back. Why did he kiss her? उससे मकसद नहीं पूरा होता था ना उससे, because he is not willing to use her at any cost. वो किसी सूरत पे भी नहीं चाहता कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला किया जाए, तो फिर वो उसके लिए कोई भी कानूनी, गैर कानूनी, शरी, गैर शरी उज़र जो है वो तराशेगा। अच्छा, यहाँ पर एक सेकंड के लिए, यहाँ पर मैं तमाम जरूर एक सेकंड में 1 मिनट जरा ये दे दीजिए। देखिए, मेरी आप लोगों के साथ ना एक गुफ्तगू है का एक पहलू है जो कि बार बार मैं रिपीट करता हूँ, कंटिन्यूसली उसको ड्रम बीट कर रहा हूँ एक तरह से ना। वो ये है
कि जो प्ले है उसकी अपनी एक दुनिया है, और वो जो प्ले है उसकी ना सिर्फ अपनी दुनिया है, उसका एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। मैंने अक्लीमिया को क्यों कहा कि आप जरा ये ब्रीफ करें जरा, मैं तो बहुत सी चीजें आपको पढ़ा चुका था, लेकिन मैंने जानबूझ के ये आज का जो सेशन ये डेवलप किया। क्यों? क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी मैं कोई टेक्स्ट पढ़ूं, मुझे चाहिए कि मैं उसकी टेक्स्ट की दुनिया के मुतालिक सोचूं। मैं अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी सोच को लाके उस प्ले को बायस ना करूं, अदरवाइज तो वो बायस है। अदरवाइज तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपनी कल्चर लेंस से मैं किसी और चीज को परसीव कर रहा हूं। ये मॉडर्न थिंकिंग के खिलाफ बात है, ठीक है। जिस थिंकिंग को मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में इस बात की बहस का आगाज किया था कि आप जो है वो आप अपने कल्चर से लोगों को कल्चर को नहीं परसीव कर सकते, ठीक है। ये डायनामिक्स जो है गलत है। तो जब टेक्स्ट पढ़ते हैं, ये नया हमारा तरीका है, ये 1980s के बाद से हमने टेक्स्ट ऐसे पढ़ना शुरू किया। बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनली वी रीड द टेक्स्ट लाइक दैट। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, और या इंडिया चंद मुल्कों में से एक है जहां पर टेक्स्ट को हम कैसे पढ़ते हैं, हम अपने मुताबिक पढ़ते हैं। अदरवाइज आपको टेक्स्ट पढ़ने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना जरूरी है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है। अमेरिका की अपनी वैल्यूज हैं, अपनी कल्चरल नॉर्म्स हैं, वो जो हिस्टोरिकल पीरियड है उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को सामने रख के मैं मलिक हसन की इस बात से एग्री करता हूं कि हम ये नहीं भूल सकते कि यहाँ पर जो है ये मस्कुलिनिटी जो है वो एक इशू है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ मैं ये भी जरूर कहता हूं कि अगर आप इस जमाने की टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करें और आप एक चीज देखेंगे कि उन तमाम में आपको मेजॉरिटी जो टेक्स्ट है, जो पॉपुलर टेक्स्ट है, उनके अंदर आपको इडिपस रेक्स, ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नजर आता है। क्योंकि मैंने फिर कहा कि गॉड्स जो है वो उनकी जगह रिप्लेस किसने कर दिया? सोसाइटी ने रिप्लेस किया और साइकोलॉजिकल फोर्सेस ने किया। इंसान के अंदर भी तो एक फोर्स है, साइकोलॉजिकल फोर्स, ठीक है। जो, और आप मत भूलें, रिक्रिएट करना, प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ी इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। औलाद एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी जिंदगी का, और अब वो अगर औलाद नहीं उसके पास आती, वो पैदा नहीं कर पाता, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल इश्यूज है, ठीक है। और इसके मतलब है कि वो उसको अपनी सेक्सुअलिटी पे भी शक है, दूसरों की सेक्सुअलिटी पे भी शक है। मतलब देयर इज एक और जो और ऑर्थर मिलर बहुत होशियार है एज ए ड्रामेटिस्ट। ये उसका आइडिया था, ये असल कहानी नहीं है साथियों, ये असल कहानी नहीं है, ये उसकी क्रिएटिविटी है ना जो उसके अंदर वो लेकर आया। वो क्रिएटिव उसने सोचा थोड़ी देर के लिए कि ये अपनी नीज के साथ ताल्लुकात बनाने की एक वजह ये भी तो हो सकती है कि इसकी अपनी औलाद ना हो, और यहां से उसने एक साइकोलॉजिकल स्लैश सोशियोलॉजिकल स्लैश सेक्सुअल एलिमेंट को वो सामने लेकर आया। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, जब हम ड्रामा लिखते हैं, अभी अक्लीमिया ने एक ड्रामे को कोट किया पाकिस्तान के, तेरे प्यार के सदके। ये तमाम ड्रामे को देखिए, ये ड्रामे कौन लिख रहा है? ये ड्रामे वो लिख रहे हैं जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स। अदरवाइज तो अब ये, क्योंकि यहां ही तो हम सीखते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों के ड्रामे पढ़ के खुद ड्रामे बनाते। तो ड्रामे बनाने के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो बिलीवेबल लगे, यानी अछूते इशू जरूर हो, लेकिन जो करेक्टर है वो क्या लगे, वो बिलीवेबल लगे। तो मैं समझता हूं कि अगर वो फर्ज करें उसके यहाँ औलाद होती और फिर वो ऐसी हरकतें कर रहा होता, ठीक है, तो क्या होता है, ये बिलीवेबल नहीं लगता। लेकिन क्योंकि उसकी औलाद नहीं है, इसलिए ये तमाम चीजें हमें क्या लग रही हैं, ये बिलीवेबल लग रही है। देखिए साथियों, मैं आज आपको एक और बात देता हूं, कहां से आप पूछेंगे मेरे से कि कहां से पीएचडी स्टार्ट होती है, पीएचडी कहां से स्टार्ट? ये टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर मुझे आज अगर आप मुझे अक्लीमिया की प्रेजेंटेशन और आज मुझे मलिक हसन रजा की प्रेजेंटेशन नजर आई, तो मैं कैसे कहता हूं ये पीएचडी? कैसे मुझे पता चलता है कि ये पीएचडी मटेरियल है? सोच कहां से पीएचडी मटेरियल? वहां से पीएचडी मटेरियल स्टार्ट होता है जहां पर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को
एक साथ लेके चलने की आदत डालते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पीएचडी के साथ पीएचडी की जो सफर है, ये जो जर्नी है, इसके अंदर सबसे पहली चीज सिखाई जाती है सब्र। सब्र। मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूं कि यकीन माने कि पहले 6 महीने जब मैंने पीएचडी के अंदर पहले 6 महीने मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि आया मेरे साथ इस किस्म का सलूक क्यों किया जा रहा है। यानी हर बंदा मेरे से सवाल पूछता है यार, हर बंदा मेरे साथ ही तकलीफ है। मैं कोई बात करूं मेरे साथ एक सवाल आ रहा, मैं कोई सवाल करूं मुझे एक साथ, क्योंकि वो दुनिया खत्म हो गई। पीएचडी से पहले की दुनिया में कोई बोलता था और हम सुनते थे, अब ऐसा नहीं है, अब सब बोलेंगे। तो ये तय बात है, पीएचडी में ये तय बात है कि वी विल ऑल हियर ईच अदर आउट। उनके आर्गुमेंट सीखेंगे, उनके सुनेंगे, एहतराम करेंगे उनके आर्गुमेंट्स का। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मलिक हसन रजा और अकलीमिया के जो आर्गुमेंट्स थे उनको आपने सुना, ठीक है? क्योंकि हम चीज मैंने ऐड करनी है आपकी इजाजत, प्लीज आप मलिक हसन सर। इंसेस्ट को के हवाले से अगर स्टडी किया जाए तो इम्पोटेंसी जो है वो उसकी स्टडी जो है यहाँ पे उसकी स्टडी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि एक गालिब इम्कान ये भी है कि बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग एनी चाइल्ड तो ही माइट बी इम्पोटेंट, ठीक। तो अब वो जो डेस्परेट मूव होता है अपनी इम्पोटेंसी को छुपा के मस्कुलिन आइडेंटिटी को असर्ट करने का, उस पे सर एक सार्थ की शॉर्ट स्टोरी है एरिस्टोटस। वो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। प्लीज आप शेयर करें हमसे, व्हाट्सएप पे शेयर करें हमसे, अगर आप शेयर करें। जी सर, वो मैं शेयर कर देता हूँ। एरिस्टोटस है सर उसकी स्टोरी। और दूसरा जो सन ऑल्सो राइजेस है हेमिंगवे का, और उसमें जो एक कैरेक्टर है एंड ही इज इन्वॉल्व्ड विद द गर्ल, और वो जो है उसके साथ इन्वॉल्व्ड सिर्फ फेस सेविंग के लिए। क्यों? क्योंकि ही इज इम्पोर्टेंट सेक्सुअली, लेकिन ही डजंट वांट द सोसाइटी टू नो अबाउट दिस फैक्ट एंड ही कीप्स ऑन रोमिंग विद हर एंड ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद हर। तो ये जो एक धचका होता है ना मैस्कुलिनिटी का, मेरे ख्याल से तो ये वही असर्शन हमें यहाँ पे नजर आती है। बहुत जबरदस्त। Yes, you're right, because देखिए सर, Mr. Hassan, you're very right. I agree with this very point, because आप देखिए जब उसको वो physically underestimate भी करता है, he keeps on hinting on his physical appearance. तो मतलब और and he tends to prove him that he is not a man and he is the man, because when he is dancing he prefers to do boxing. तो ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फिजिकल टर्म्स में तो नहीं डिबेट हो सकती, तो वो फिर इस तरह से मैस्कुलिनिटी को पावर की सेंस में, अपीयरेंस यानी मैनली अपीयरेंस की सेंस में, तो वो उस पे करता है। और मे बी इसीलिए वो शायद वो उसको कैथरीन को भी ऑन करने की कोशिश करता है उस तरह से। इसमें एक फैलिक सिंबल आप देखें ना कि जब वो सिगार लेके आती है अंदर से और उसके मुंह में सिगार लगा के और वो उसको जलाती है सिगार को, तो वो भी सिगार जो है वो भी एक मैस्कुलिनिटी, एक फैलिक सिंबल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आप कामरान से मेरी गुजारिश है कि वो एक सवाल पूछे, उसके बाद फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा और फिर मैं जो हमने डिस्कस करना है कि हमने आगे क्या लेके चल रहे हैं और कैसे लेके चल रहे हैं। जी प्लीज। जी सर। सर इसमें मेरी थोड़ी 1-2 सबमिशन है मिस अकलीमिया के क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और इसमें ये एक है कि उसके 3-4 पर्सपेक्टिव हैं जो मेरे माइंड में अभी आए हैं। एक तो उसका पर्सपेक्टिव है कि वो ग्रीक ट्रेजेडी से इंस्पायर हुआ है, इन्फ्लुएंस है ग्रीक ट्रेजेडी का आर्थर मिलर पे। तो जब उसने ये इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया एडी को, तो इसको वो ले रहा है एज सिंबॉलिकली या मेटाफोरिकली, वो इसको ट्रीट कर रहा है एज अ किंग इन दिस सोसाइटी, ठीक है। और एक किंग होता है तो उसकी जो राया होती है, जो डायरेक्ट उसके सब ऑर्डिनेट होते हैं, तो वो जो भी एक्ट करते हैं तो बिफोर डूइंग एनी एक्ट दे आस्क परमिशन टू देयर लॉर्ड। तो इस तरह का है कि उसने परमिशन नहीं ली, शायद इसलिए वो इसको कर रहे हैं क्योंकि उसमें ग्रीक का भी इन्फ्लुएंस है, तो वो इस करैक्टर को एज अ किंग ले रहा है, तो इसलिए वो परमिशन के हिसाब में आ रहा है। और दूसरा ये है कि वो ऑनर है,
वो जो थे इटालियन थे, जो रुडोल्फो और मार्को हैं वो इटालियन हैं, वो माइग्रेट करके इधर आए, इलीगल इमिग्रेंट हैं, और उनके यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर बहुत ज्यादा है। उनके यहाँ जस्टिस जो है ना, जस्टिस की जो उसकी फाउंडेशन है वो ऑनर पे है। ऑनर किसका? रिलेशंस का, फैमिली रिलेशंस का। और इधर एक और पॉइंट है कि फैमिली रिलेशंस को इस प्ले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो फैमिली रिलेशंस जब उसने देखा है कि वो किससे कर रहा है, तो वो एक मेटाफोरिकली उसकी जो रिस्पेक्ट है, ऑनर है, उसको डैमेज कर रहा है जी। और मैं कामरान, आपकी सबमिशन जो है, मैं समझता हूँ कि दे आर वेरी वैलिड। मुझे सिर्फ क्योंकि ये टाइम खत्म हो रहा है क्लास का, तो मैं 2-3 जो है ना अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट टुडे। दूसरी बात ये कि मैं चाहता ही हूँ कि अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं। पहली बात तो नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं कि मैं लॉर्का से स्टार्ट लूंगा, लेकिन मैं जो कामरान, फर्रुख और अवैस, इन सब को मौका दूंगा कि वो जो हमारा सेशन जो है, जो एक टाइम फ्रेम मैं दूंगा 6 बजे के बाद से 6 o'clock ऑनवर्ड जो है ना, वो मैं एक टाइम फ्रेम दूंगा कि ये भी अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर सके अच्छे तरीके से। मे बी वी विल टेक 5 to 10 minutes मोर, लेकिन ये भरपूर मौका मिलेगा इनको कि ये प्रेजेंट करें। दूसरी बात ये कि मैंने जो असाइनमेंट नंबर 2 है, उसके अंदर मैंने ये ऑप्शन खुली कर दिया आपके लिए, क्योंकि ये ऑर्थर मिलर पे मेरी असाइनमेंट है। तो ऑर्थर मिलर के कोई भी मौजू जो आप पूरी क्लास को अच्छे लगते हैं, या जो मौजू मैंने दिया है वो आपको अच्छा लगता है, आप उसको प्रेजेंट करें, लेकिन उसके साथ आपने अटैच करनी है अपनी स्लाइड्स, ठीक है? आपने जो भी, ताकि मैं उसके भी जो आपने मेहनत की है उसको भी काउंट कर सकूं, क्योंकि ये ग्रेडेड असाइनमेंट है। ये वो भी ग्रेडेड असाइनमेंट है, और आज जो आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया ये ग्रेडेड है, ठीक है जी। और मैं फिर जब आपकी सबकी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तो फिर मैं आपको ग्रेड भी असाइन कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है जी। ये है मेरी बातचीत। कोई आखिरी बात मैं करना चाहता हूं कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से खुसूसी ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी तमाम की फैमिलीज को खुश रखे, और हमारे लिए जो है ये ईद की सदके अल्लाह ताला हमें जो है ना वो किसी हर किस्म के वायरस से, इन चीज़ों से बचा के रखे, और अल्लाह ताला हमें कामयाबियां दे। और ये जो आप सब लोगों का इनपुट है ये बहुत वैलिड है। और कामरान, अक्सा, फरूख हमीद, इरफान और ख़ास तौर पर अवैस, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं ही सुनाता चीज़ें, मैं आपको भी सुनना चाहता हूँ, और मिलजुल के स्कॉलरशिप पैदा करनी, मिलजुल के रिस्पेक्ट करनी हर के सवाल की, और सवाल पूछने के बाद उसको रिस्पेक्ट करनी, उसके जवाब की। ये मुझे बड़ा नजर आया है आपके अंदर आज, और इट्स अ वेरी हेल्दी एक्सरसाइज। देखिए, पीएचडी आपको हम्बल बनाती है। पीएचडी जो है एक हम्बल एक्सरसाइज है। ये आपको दूसरों की बातों को सुनने की समझ देती है। पीएचडी जो है ना वो एक एटीट्यूड का नाम है, और वो एटीट्यूड का मतलब क्या है? वो एटीट्यूड है कि आई वांट टू लर्न, आई वांट टू डिस्कवर, आई वांट टू एक्सप्लोर। ये है पीएचडी। पीएचडी मगरूरियत का नाम नहीं है, ठीक है? ये कोई मगरूरियत नहीं है। मैंने आपको इससे पहले भी एक जुमला कहा, वो ये था कि इट्स अबाउट क्लियर थिंकिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। बेकार की इधर उधर की मुश्किल बातें करने से पीएचडी नहीं शुरू होती। पीएचडी आती है वहां से जहां पर आप क्लियर होना शुरू होते, जहां पे आपको पर्सपेक्टिव समझ में आना शुरू होते, जहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होते। और एक और बात ये, लोग आपसे मुख्तलिफ मौकिफ रख सकते हैं, ओपिनियन रख सकते हैं। उनके मौकिफ की रिस्पेक्ट करें यार, उनके मौकिफ की रिस्पेक्ट करें, उनको सुने, उन्हें समझें। और हम एक दूसरे के लिए, देखिए ये पीएचडी लेवल है, यहाँ पे हम सब एक दूसरे को सुनने आए और उससे समझने आए, सीखने आए। अगर आप ग्रुप में काम नहीं कर सकते, अगर आप लोगों से सीख नहीं सकते, तो फिर पीएचडी जो है ना ये आप समझे
ये 10 नहीं 15 साल मंसूबा, क्योंकि वजह ही लोग पीएचडी में टाइम इतना क्यों लगाते, इसलिए कि वो तन्हाई का शिकार हो जाते। तन्हाई से बचाना है खुद को, आइसोलेशन से बचाना है अपने आप, और एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप सब लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट की। ये सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये मेरी जो पब्लिकेशन है किसके साथ हो रही है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। ये प्राइड है मेरे लिए एज ए टीचर कि हम इस काबिल हैं, कि हम मिल के इतना कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है मेरी इंडिकेशन। मैं सच्ची बताऊं आपको, मुझे मेरे साथी कहते हैं, मेरे पीएचडी दोस्त कहते हैं कि आइए मिल के काम करें, लेकिन उससे ज्यादा मैं अपने स्टूडेंट के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। उनसे ज्यादा मैं आपके साथ इंटरेस्टेड हूँ काम करने। मैं आपको लोगों को कॉल करता हूँ, मैं आप लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है कि ये चीज है जो मेरी अल्लाह के यहाँ पसंद की जाएगी, बिकॉज आई एम वर्किंग विद यू। हम स्कॉलरशिप प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से आपको सबको दोबारा से ईद मुबारक। सर। और कोई बात आप कहना चाहते हैं? तो प्लीज मुझे सिर्फ हाफ मिनट दे दें। जी प्लीज। Thank you. Mr. Hassan, Mr. Kamran, and Mr. Usman, thank you for your insights for the discussion. Thank you very much. And rest of all, thank you and Eid Mubarak, including you. Thank you. ले जी, मेरी तरफ से फिर आप सब लोगों को ईद मुबारक और खुदाफिज। सर एक मिनट। जी फरूख प्लीज। जी सर, जो दो साथी हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर सके, उनका था इरफान साहब से तो रब्ता किया, तो उनका शायद कोई कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा था। मैंने व्हाट्सएप में भी लिंक भी शेयर कर दिया, पता नहीं बाद में भी वो क्यों नहीं कर सके। दूसरा, अवैस साहब का जो है वो उनकी वालदा की तबीयत खराब थी, तो वो उनको लेके हॉस्पिटल जो है ना वो गए हुए थे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे जी। आमीन जी। तो इसलिए वो ज्वाइन जो है वो नहीं कर सके। फरूख, मैं आई रियली अप्रिशिएट कि ये जो आपका एरिया है जिस पे आपने काम करना है, दूसरों ने करना है, ये जारी रहना है। और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला 6 टू ऑनवर्ड ये आपका शो होगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेक्शन में सर एक और है, इसमें एक छोटी सी बात जो मुझे लग रही थी जी प्लीज, क्योंकि इस तरह ठीक है आपने उसको कर दिया, अगर टाइम फ्रेम दे दिया जाए ना तो शायद उससे भी ज्यादा चीजें जो है ना वो मिनिमम टाइम में जो है वो हो सकती है। उसमें मैं इसमें इसलिए मैंने ये टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया, मैं बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि मैं चाहता था कि सब पार्टिसिपेट करें। और जरा ये मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि टाइम इज ओवर। 3 घंटे पूरे हो गए मेरे आपके साथ, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम वी विल मेक इट अ टाइम लिमिट। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Like to plant my feet on the Brooklyn Bridge. What a lovely view from heaven looks at you from the Brooklyn Bridge. And I love to listen to the wind through her strings, the song that she sings for the town. I love to look up at the clouds in her hair. She's learned to wear like a crown. If you've been a rover, journey's end lies over the Brooklyn Bridge.